السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر بیجنگ میں پروقار تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر 15 ممتاز شخصیات کو اعلیٰ ترین سرکاری اعزازات عطا کیے گئے۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر بیجنگ میں 15 ممتاز شخصیات کو اعلیٰ ترین سرکاری اعزازات عطا کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ایوارڈ کی تقریب کا آغاز عظیم عوامی ہال میں چین کے قومی ترانے سے ہوا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کی جانب سے میڈل آف دی ریپبلک، فرینڈشپ میڈل اور اعزازی ٹائٹل سے نوازا گیا۔ میڈل آف دی ریپبلک کے سرخ اور سنہری تمغے ان افراد کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے عوامی جمہوریہ چین کی تعمیر و ترقی میں عظیم کردار ادا کیا ہے، جبکہ سنہری اور نیلے فرینڈشپ میڈل غیر ملکیوں کے لیے چین کا سب سے بڑا ریاستی اعزاز ہے، جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے چین کی جدید کاری کی مہم، چین اور دنیا کے مابین تبادلے اور تعاون کو فروغ دینے اور عالمی امن کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ قومی اعزازی ٹائٹلز کے تمغے بنیادی طور پر سرخ اور سنہری رنگوں میں مختلف قومی شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے منفرد افراد کو دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے چین کی معیشت کے بارے میں پر امید ہیں۔ مرکزی بینک کی جانب سے 2013 میں SLF متعارف کروایا گیا۔ یہ مالیاتی اداروں کی لیکوڈیٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے چین کے معیشت اور اس کی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پر امید ہیں، کیونکہ ملک کے مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ متعدد اہدافی میکرو پالیسیوں نے مارکیٹ کے فوری ثمرات سامنے لائے ہیں۔ پیپلز بینک آف چائنا نے اسٹینڈنگ لینڈنگ فیسلٹی کی شرح سود کو جولائی کی سطح سے 20 بیسس پوائنٹس کم کر دیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے 2013 کے اوائل میں متعارف کرایا گیا SLF مالیاتی اداروں کے لیکوڈیٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ادارے مرکزی بینک سے SLF قرضے لے سکتے ہیں، کوالیفائڈ بانڈز اور دیگر کریڈٹ اثاثوں کو ضمانت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ چین میں سرمایہ کاری میں اعتماد تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مورگن سٹینلے چائنا کے مطابق اس بار مجموعی حکمت عملی میں تبدیلی کے بعد وہ کافی پر امید ہیں کہ فیصلہ سازی کی سطح معاشی بحالی کو مستحکم کرنے کے لیے مالیاتی اور مالیاتی ریگولیٹری پالیسیوں میں مربوط کوششیں کرے گی۔ چین کی اسٹاک مارکیٹ میں حالیہ دنوں تیزی کا رجحان رہا ہے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے توقع سے زیادہ پالیسی پیکیج کی وجہ سے بھاری ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ چین کی وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل کے نفاذ پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جامع جنگ بندی کے حصول میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی حل کے نفاذ پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے وانگ یی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں جامع جنگ بندی کے حصول میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور اس سے نکلنے کا بنیادی راستہ دو ریاستی حل میں مضمر ہے۔ مسئلہ فلسطین انسانی ضمیر کا سب سے بڑا زخم ہے۔ غزہ میں تنازع اب بھی جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے فلسطین کی دیرینہ خواہش کو مزید نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور فلسطینی عوام کے ساتھ تاریخی ناانصافی کو بھی مزید نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ وانگ یی نے فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی بحالی اور اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے ان کی کوششوں کے لیے چین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کے منصفانہ مقصد کا پرزور حامی رہا ہے۔ چین نے اپنا تجرباتی سیٹلائٹ شیجیان 19 خلا میں بھیج دیا۔ یہ سیٹلائٹ متعدد کلیدی ٹیکنالوجیز میں نمایاں کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ چین نے لانگ مارچ 2D راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا دوبارہ قابل استعمال اور قابل واپسی تجرباتی سیٹلائٹ شیجیان 19 خلا میں بھیج دیا۔ شیجیان 19 متعدد کلیدی ٹیکنالوجیوں میں نمایاں کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔
جن میں دوبارہ قابل استعمال مائکرو گریوٹی سپورٹ، اعلیٰ پے لوڈ کی صلاحیت اور دوبارہ داخلے کی جانچ کی خدمات شامل ہیں۔ توقع ہے کہ ان کامیابیوں سے چین کے قابل واپسی سیٹلائٹس کی تکنیکی سطح اور اپلیکیشن کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوگا، جبکہ آپریشنل اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ یہ سیٹلائٹ خلائی افزائش نسل کے تجربات کے لیے بھی تیار ہے، جس میں مختلف جگہوں سے منتخب پودوں کے بیج شامل ہیں۔ اس کوشش کا مقصد چین کی خلائی افزائش کی ٹیکنالوجی کو بلند کرنا ہے۔ یوں بیج کی ترقی میں تکنیکی خود انحصاری کی حمایت ممکن ہے۔ محققین خلائی تجربات کے لیے شیجان 19 کی دوبارہ قابل استعمالیت سے فائدہ اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی گھریلو مصنوعات کے علاوہ شیجان 19 سیٹلائٹ تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت 5 ممالک کے پے لوڈ کا حامل بھی ہے، جو خلائی تحقیق میں عالمی تعاون کے لیے چین کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ چین کا پہلا برقی انجن تیار کرنے والا شہر عالمی سطح پر مقبول ہو چکا ہے۔ ماہرین نے ٹرین میں بہت سارے ذہین سسٹم انسٹال کیے ہیں۔ CRRC چوجو کی مصنوعات 6 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ چین کا پہلا برقی انجن تیار کرنے والا شہر عالمی سطح پر مقبول ہو چکا ہے اور دنیا کی بہت سی برقی ٹرینیں آج چین کے وسطی صوبہ ہونان کے شہر چوجو میں اپنی جڑیں تلاش کر رہی ہیں۔ شہر کی لوکوموٹو کمپنی میں انجینئرز اور تکنیکی ماہرین ملائیشیا کی الیکٹرک ٹرین سروس کے لیے مخصوص جدید ترین میٹر گیج ٹرین کو مکمل کرنے کے لیے پوری رفتار سے کام کر رہے ہیں۔ تکنیکی حکام کے مطابق اس ٹرین کے لیے یہ تیسرے ورژن کی مصنوعات ہیں۔ پچھلے منصوبے کے مقابلے میں ماہرین نے ٹرین پر بہت سارے ذہین سسٹم انسٹال کیے ہیں۔ یہ کمپنی کے ذریعے تیار کردہ بہت ساری ٹرینوں میں سے ایک ہے جو اب عالمی سطح پر استعمال ہوتی ہے اور ترکیہ سے برازیل اور بیلجیم سے میکسیکو تک بے شمار ممالک فہرست میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر CRRC چوجو کی مصنوعات 6 براعظموں اور 50 سے زائد ممالک اور خطوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نیدرلینڈز کو برآمد کرنے کے لیے انجنوں کی تازہ ترین کھیپ کامیابی سے پروڈکشن لائن سے باہر نکل چکی ہے۔ 1936 میں قائم ہونے والی اس کمپنی اور اس کے پیش رووں نے چین کی برقی لوکوموٹو انڈسٹری میں بڑی پیش رفت دیکھی ہے۔ بیجنگ میں گلوبل آپریشنل نیٹ ورک آف اینٹی کرپشن لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 105 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 400 نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے چین کی انسداد بدعنوانی کی دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والے گلوبل آپریشنل نیٹ ورک آف اینٹی کرپشن لا انفورسمنٹ اتھارٹیز گلوب نیٹ ورک کے کل رکن اجلاس کے نمائندوں نے انسداد بدعنوانی کی کوششوں پر بین الاقوامی تعاون بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ اجلاس میں 105 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً 400 نمائندوں نے شرکت کی۔ جون 2021 میں قائم ہونے والا گلوب نیٹ ورک دنیا کا مستند انسداد بدعنوانی قانون نافذ کرنے والا تعاون پلیٹ فارم ہے۔ یہ بدعنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن کے تمام رکن ممالک اور ریاستوں کے انسداد بدعنوانی قانون نافذ کرنے والے حکام کے لیے کھلا ہے۔ تاحال یہ نیٹ ورک دنیا بھر کے 120 سے زائد ممالک سے انسداد بدعنوانی قانون نافذ کرنے والے 200 سے زائد حکام کو اپنی جانب متوجہ کر چکا ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے بدعنوانی کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی تعاون کو بہتر بنانے اور احتساب کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شرکاء کے نزدیک عالمی تعاون کو بہتر اور آسان بنایا جائے، بدعنوانی کے خلاف جنگ کو زیادہ مؤثر بنایا جائے اور سزا سے استثناء کو ختم کیا جائے۔ شرکاء نے چین کی انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو سراہا اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ جنوبی چین کے شہر ناننگ میں 21ویں چین آسیان ایکسپو کا انعقاد ہوا۔ پہلے عوامی اوپن ڈے میں 40,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ ایونٹ میں 3,000 سے زائد کاروباری ادارے شریک ہوئے۔ جنوبی چین کے شہر ناننگ میں منعقدہ 21ویں چین آسیان ایکسپو کے پہلے عوامی اوپن ڈے میں 40,000 سے زائد زائرین نے شرکت کی۔ اس ایونٹ میں 3,000 سے زائد کاروباری اداروں نے شرکت کی ہے، جن میں آسیان اور خطے کے باہر کے 800 سے زائد کاروباری ادارے بھی شامل ہیں۔ رواں سال کی نمائش میں اسٹریٹجک ابھرتے ہوئے موضوعات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آسیان ہائی ٹیک مصنوعات جیسی نمائشی شعبوں کو شامل کیا گیا۔ نمائش کی مدت کو پچھلے 4 دن سے بڑھا کر 5 دن کر دیا گیا، جس میں ایک خصوصی عوامی افتتاحی دن بھی شامل رہا۔ زائرین کھانے پینے سے لے کر تفریح کے لیے خریداری تک ون سٹاپ کھپت سے لطف اندوز ہوئے۔ نمائش کنندگان نے کہا کہ ایک مرتبہ اس ایونٹ میں حصہ لینے کے بعد وہ اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ یہ وسیع نمائش لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ نمونہ لینے کے لیے بوتھ پر آتے ہیں۔
बैरूनी ममालिक से नफीस दस्तकारी और जेवरात जैसे कालीन और फानूस ने भी ज़ायरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। इसके साथ ही एक्सपो के मौके पर मुख्तलिफ फोरम्स का भी इनेकाद किया गया। शुरका ने कहा कि उन्हें चीनी कंपनियों के साथ ताउन के वसी मौक़े मैसर आए हैं। हांगकांग और मकाओ में कौमी दिन की मुनासबत से सजावट की गई। चीन का कौमी दिन हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौमी दिन की तातीलात 7 अक्टूबर तक जारी रहती हैं। हांगकांग और मकाओ में कौमी दिन की मुनासबत से सड़कों और मकामात को शानदार अंदाज से सजाया गया है। चीन का कौमी दिन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और कौमी दिन की तातीलात 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जारी रहती हैं। चीन का कौमी परचम और हांगकांग SAR का झंडा हांगकांग भर की गलियों और सड़कों में देखा जा सकता है, जिससे कौमी दिन की तकरीबात में हुब्बुल वतनी का माहौल पैदा होता है। कौमी दिन की मुनासबत से हांगकांग में बेशुमार तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी भी शामिल है। चीन की 75वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर हांगकांग के तमाम शोबे खुशी और जोश खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मुल्क मजबूत हो और लोग खुशहाल हों। मकाओ SAR में भी सड़कों पर कौमी परचम और बैनर्स देखे जा सकते हैं। मकाओ के नौजवानों ने कहा कि वो अपने मुल्क की तरक्की के बारे में बहुत पुरजोश और फ़ख्र महसूस करते हैं। मकाओ की तकदीर हमेशा मादरे वतन से जुड़ी हुई है। शेंज़न में चीन के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में ड्रोन्स की जानिब से शानदार लाइट शो पेश किया गया। जनूबी चीन के शहर शेंज़न में चीन के कौमी दिन के मौके पर ड्रोन्स की जानिब से शानदार लाइट शो पेश किया गया। शो में 10,000 से ज़ायद ड्रोन्स की जानिब से बनाए गए खूबसूरत नक्शो निगार को भरपूर सराहा गया। आसमान में शहर अजीम इम्कानात का हामिल के मौजू के साथ इस शो में मजमूई तौर पर 10,197 ड्रोन्स आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में बुलंद हुए और शेंज़न बे पार के ऊपर रात के वक्त आसमान को रोशन किया। यूँ आला टेक्नोलॉजी और आर्ट का एक शानदार नमूना तख्लीक किया गया। दिलकश और मुतहरिक डिस्प्ले ने बहुत से रिहायशियों और सयाहों को अपने जानिब राग़िब किया, जिन्होंने मुख्तलिफ नमूनों के मंजरकशी करने वाले ड्रोन्स की तस्वीर शौक से खींची। इवेंट ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक ड्रोन लाइट शो ने 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, जिनमें बैक वक्त एक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किए जाने वाले सबसे ज़्यादा ड्रोन्स और दूसरा लाइट शो में शरीक सबसे ज़्यादा ड्रोन्स शामिल हैं। ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मुसलसल 7 दिन तक 5 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन शोज़ का इनेकाद किया जाएगा। चीन के शहर हाइको में वर्ल्ड न्यू एनर्जी व्हीकल कांग्रेस का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद न्यू एनर्जी गाड़ियों की पायदार और सेहतमंद तरक्की को फ़रोग देना था। चीन के शहर हाइको में 2024 वर्ल्ड न्यू एनर्जी व्हीकल कांग्रेस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नायब वज़ीर शिन गाओबिन ने कहा कि आलमी न्यू एनर्जी गाड़ियों की सनत को अब भी आगे दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तेज़ी से तरक्की कर रही है। कम कार्बन इर्तिका और आलमी ताउन के उन्वान से मुनक़िदा इस 3 रोज़ा तकरीब का मकसद न्यू एनर्जी गाड़ियों की पायदार और सेहतमंद तरक्की को फ़रोग़ देना, कार्बन न्यूट्रल के हदफ को मुश्तरका तौर पर हासिल करने के लिए आलमी ताउन को मजबूत बनाना रहा। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी न्यू एनर्जी गाड़ियों की सनत में तेज़ी से तरक्की देखने में आ रही है, क्योंकि पिछले 8 माह में 10 मिलियन से ज़ायद न्यू एनर्जी गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। नई कारों की फ़रोख्त का तनासब 18% तक पहुँच गया है, जो साल ब साल तकरीबन 3% इजाफा है। चीन में पिछले 8 माह के दौरान 70 लाख से ज़ायद NEV फ़रोख्त हुई, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 30.9% इजाफा है। ताहम बदस्तूर ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन के शहर हांगजू में 3री ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो मुनाकिद हुआ। 60 से ज़ायद अक़साम के रोबोट्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। आलमी रोबोट इंडस्ट्री में जदीद तरीन तरक्याती रुझानात को उजागर किया गया।
मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग के शहर हांगझो में मुनक़िदा तीसरी ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो में मुख्तलिफ सनतों में खिदमात अंजाम देने वाले 60 से ज़ायद अक़साम के रोबोट्स ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई। एक्सपो में चीनी और आलमी रोबोट इंडस्ट्री में जदीद तरीन तरक्याती रुझानात को उजागर किया गया। नुमाइश में इंसान नंबर रोबोट्स को मरकज़ी तवज्जो हासिल रही। एक आम इंसान नंबर रोबोट का वज़न 50 किलोग्राम से भी कम है और ये अच्छा तवाज़न बरकरार रखते हुए 3.3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से रक्स कर सकता है, हरकत कर सकता है और दौड़ भी सकता है। तालीमी रोबोट्स भी मुतासिर कुन रहे। ये रोबोट्स बच्चों को चीनी सकाफत से मुतारिफ करवाते हैं, जबकि मस्नूई ज़हानत और रोबोट्स में उनकी दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। नुमाइश कुनंदगान ने कहा कि हमारी बुनियाद मस्नूई ज़हानत की तालीम पर मरकूज़ है। हकीकी ज़िंदगी के मंजरनामे में नए मुतारिफ कराए गए सफाई रोबोट्स मुकम्मल तौर पर इंसानों की मानिद सफाई करने की अहलियत रखते हैं। ये रोबोट्स बैतुल-खला धोने और कचरा साफ करने समेत दीगर अफ़ाल भी सर अंजाम दे सकते हैं। वैसे भी रोबोट घरेलू खिदमात, सेहत की देखभाल, तिब्बी खिदमात और हंगामी बचाव में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीन के नंगशा हवाई खुद इख्तियार इलाके में ज़रई पैदावार में इजाफा हुआ है। डेयरी फार्मिंग, मवेशियों की अफजाइश और सब्जियों की पैदावार को भी फ़रोग मिला है। ज़हीन आलात ने शुमाल मगरबी चीन के नंगशा हुई खुद इख्तियार इलाके में ज़रई पैदावार में इजाफा किया है। मशीनी फार्मिंग के तरीकों से डेयरी फार्मिंग, मवेशियों की अफजाइश और सब्जियों की पैदावार को फ़रोग मिला है। निंगशा की लिंगाओ काउंटी में मवेशियों का एक अड्डा गाय का दूध धोने के लिए स्मार्ट आलात का इस्तेमाल करता है। गायें दूध धोने वाले मुकाम पर एक कतार में खड़ी होती हैं। एक चक्कर में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। हर गाय का दिन में 3 मरतबा दूध दुहाया जाता है और इसमें सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। इसी तरह नौज़ायदा बछड़ों की देखभाल खुसूसी अहलकार करते हैं और 2 माह बाद इन्हें दूध देने वाली गाय के बाड़े में मुंतकिल किया जाता है। बाड़े में गाय के लिए 8 500 मीटर लंबे और 300 मीटर लंबे गोदाम हैं। गोदामों के दरमियान स्टोन पर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल नस्ब किए गए हैं, जो न सिर्फ तवानाई की बचत करते हैं बल्कि गाय को साया और ठंडक भी फराहम करते हैं। निंगशा का यह इलाका रोशनी और गर्मी के वाफर वसाइल से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है, जो सर्द मौसम की सब्जियों के म्यार को भी बढ़ाते हैं। इंस्ट्रक्टर मिनावर अली तालिब इल्मों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए वक्फ हैं। उन्हें इनकी खिदमात पर कौमियती इत्तेहाद और तरक्की के लिए रोल मॉडल से नवाजा गया। मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग में निंगबो पॉलीटेक्निक में विगोर इंस्ट्रक्टर मिनावर अली अपने एक दहाई पर मुहित नज़रियाती और सियासी तालीम में तालिब इल्मों के दरमियान कौमियती इत्तेहाद और हमआहंगी को फ़रोग देने के लिए वक्फ हैं और उन्हें कौमियती इत्तेहाद और तरक्की के लिए रोल मॉडल से नवाजा गया है। कौमियती इत्तेहाद और तरक्की के रोल मॉडल को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए बीजिंग में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। मजमूई तौर पर 352 ग्रुप्स और 368 अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया। मिनावर अली एजाज़ पाने वालों में से एक हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने मॉडल्स के नुमाइंदों को अवार्ड्स पेश किए। कैंपस ने हाल ही में कुछ ग्रेजुएट तलबा का खैर मकदम किया है, जो मिनावर के साथ अपने काम और इंटर्नशिप के तजर्बात को बांटने के लिए बेताबी से वापस आए। मिनावर की ज़ेर निगरानी तमाम कौमियती ग्रोहों के तालिब इल्म कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देते हुए मुआशी और समाजी तरक्की की हिमायत करने में नई कुव्वत बन चुके हैं। मिनावर के नज़दीक तमाम कौमियती ग्रोहों को अनार के बीजों की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। उनकी असल ख्वाहिश यही है कि अपने तालिब इल्मों को अनार के बीजों की तरह मजबूती से मुत्तहिद करूं। कीक्यार के आसपास रेगिस्तान के खिलाफ मुसलसल कोशिशें रंग ले आईं। 3,37,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित तर्कमियान चीन का सबसे बड़ा सहरा है। इस सहरा को मौत का समंदर के नाम से भी जाना जाता है। केकाय और इसके आसपास रेगिस्तान के खिलाफ दहाइयों की मुसलसल कोशिशें रंग ले आई हैं, जिससे शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में वाक़े एक्सो प्रेफेक्चर की इस बंजर ज़मीन के लिए मुआशी और माहौलियाती फ़वाइद पैदा हुए हैं। सहराए तकले-मकान के शुमाली किनारे पर वाक़े केकाय कभी अपने हंगामा खेज़ मौसम और मुसलसल रेत के तूफ़ानों की वजह से जाना जाता था। 3,37,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित तकले मकान चीन का सबसे बड़ा सहरा है और इसे मौत का समंदर के नाम से जाना जाता है। सहरा का मुकाबला करने और करीबी रिहायशियों पर रेत और धूल के तूफ़ानों के मनफी असरात को कम करने की कोशिश में 1986 में केकाय में शजरकारी के पुरजोश मंसूबा शुरू किया गया। आज इसे ग्रीन ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। शजरकारी मंसूबे की पहली दिहाई में केकाय ने तकरीबन 2200 हेक्टेयर मसनूई जंगलात मुकम्मल किए और दूसरी दिहाई में मज़ीद 4,360 हेक्टेयर पर शजरकारी की गई।
2012 से लेकर अब तक कैकाई ने 62,000 हेक्टेयर रकबे पर शजरकारी हासिल की है और कुल शजरकारी 80,000 हेक्टेयर से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में चीन की कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुनिया भर में बेमिसाल हैं। चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से चीन के कौमी दिन की मुनासिबत से इस्लामाबाद में शानदार सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुनिया भर में बेमिसाल हैं। दोस्त ममालिक के ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की वाहिद मिसाल है दुनिया में कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कभी ख़ज़ां का शाइबा भी नहीं हुआ। चीन की हुकूमत ने 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का जो जश्न मनाया, वो बजा तौर पर वहाँ के अवाम और हुकूमत हकदार है कि उन्होंने 75 सालों में जो कामयाबियाँ समेटी हैं, कुर्राए अर्ज़ में उनकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई मुल्क 3 से 4 दिहाइयों में 80 करोड़ अवाम को गुर्बत की सतह से निकाल कर बाहर कर दे। चीन की ये कामयाबियाँ जहाँ आज उसे एक जदीद मईशत के तौर पे दुनिया में पेश कर रही हैं, चीन की कामयाबी का एक बड़ा पहलू ये भी है कि चीन ने अपनी हज़ारों साल की उस सकाफत और रवायत को भी मतरूक नहीं किया जिसका हामिल है। सो चीन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी या जदीदियत और जो उसकी तारीख़ है उसके दरमियान कोई तज़ाद नहीं देखता। चीन ने चाइनीज़ स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट या चाइनीज़ अप्रोच इन डेवलपमेंट अपनाकर दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर बराए कौमी वर्सा और सकाफत सैयद जमाल शाह ने अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 75वीं सालगिरह के लिए मुबारकबाद दी। अपने तमाम चीनी दोस्तों को अजीम मुल्क चीन की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको मुबारक हो। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के साबिक सफीर सैयद हुसैन जावेद और चेयरपर्सन अकादमी अदबियात पाकिस्तान नजीबा आरिफ ने चीनी अवाम को चीन के कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। तकरीब में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात और पाकिस्तान में चीनी लोगों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान सेनेट के नायब चेयरमैन सईदार खान नासिर, पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार अवैस लगारी, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर गैसर अहमद शेख, वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शजा फातिमा ने वीडियो पैगामात में चीनी अवाम को चीन के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के दौरान CGTN उर्दू की जानिब से तैयार करदा डॉक्यूमेंट्रीज पेश की गई जिनमें चीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को उजागर किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती लगस का शानदार मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान के कुंग-फू मास्टर लड़कों और लड़कियों ने चीन की रिवायती वुशु और थाई जी चुन भी खिलाया। तकरीब में पाकिस्तानी नौजवानों के नुमाइंदों ने चीन और पाकिस्तान के कौमी तराने पेश किए और चीनी सकाफती रक्स भी किया।
तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी गुलकार की जानिब से पेश की गई पुरजोश और मशहूर चीनी और पाकिस्तानी मौसीकी पर हुआ। तकरीब में शरीक तमाम शुरका खूब लुत्फ़ अंदाज हुए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम कार्बन और माहौल दोस्त होने की वजह से सफ़र में जिद्दत ला रही हैं। इस वक्त इंटरनेट पर Xiaomi SU7 बहुत मशहूर है। बैरूनी डिज़ाइन और जदीद टेक्नोलॉजी इन गाड़ियों का खासा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बेशुमार तब्दीलियों से गुजर रही है। इन तब्दीलियों में सब सफ़र पर बिलाशुबा हरिया बरसों में बहुत ज़्यादा तवज्जो मंजूर की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपनी कम कार्बन, माहौल दोस्त और तवानाई की बचत की खुसूसियात के साथ हमारे सफ़र के तरीके को तब्दील कर रही है। जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ की सनत की तरक्की और हर गाड़ी की नुमायाँ खुसूसियात दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रही है। इस वक्त इंटरनेट पर Xiaomi SU7 का चर्चा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि Xiaomi SU7 इतनी मकबूल क्यों है। चीन में नई तवानाई की गाड़ियाँ हर एक अपनी जादुई ताकत दिखाती है। Xiaomi SU7 के बारे में अनोखा क्या है? सबसे पहले हम इसकी बैरूनी डिज़ाइन को देखें। ये बहुत स्पोर्टी है ना, और इनके तो बहुत अहम सारिफिन तो 20 से 30 उम्र के नौजवान हैं और मुख्तलिफ सारिफिन की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनके रंगों के मंतखब का एक वसीह रेंज पेश करती है। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की न सिर्फ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अखराज में कमी के हदफ को हासिल करती है, बल्कि सारिफिन की तरजीहात को भी मद्देनज़र रखती है, जैसे कि बैरूनी डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इतलाक़, जो कि चीनी साख्ता हर गाड़ी में देखा जा सकता है। गाड़ी की बॉडी में बहुत से ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है और आप देखें ये हवा की नालियाँ हकीकी है। इस व्हील को देखें, ये कहा जा सकता है कि ये रेसिंग के लिए मावन है। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ड्राइविंग का मुआवजा रवायती इंजन वाली गाड़ियों से किया जा सकता है? चीनी साख्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ड्राइविंग का तजुर्बा कैसा है? आइए मिलकर देखते हैं। NFC इंडक्शन अनलॉकिंग चाबी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चले SU7 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक 2.78 सेकंड में और 0 से 200 किलोमीटर फी घंटा तक 10.67 सेकंड में पहुंच सकती है। इसकी खत रफ्तार 265 किलोमीटर फी घंटा है। हवा की मुज़ाहिमत का तनासब 0.195 CD है। 100 माइल फी घंटा की रफ्तार 0 तक रुक जाती है और ब्रेकिंग का फैसला सिर्फ 33.3 मीटर है। एक और रिस्की ग्रेट डिजाइन है। क्या आप यहाँ एक्सट्रीमिंग मोड का तजुर्बा करना चाहते हैं? मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ एक बटन से हम ये एक्सट्रीमिंग मोड तजुर्बा कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ और ये FE है। Xiaomi SU7 पर भी ज़हनी ड्राइविंग मॉडल लैस है। आइए हम तजुर्बा करें। इस गाड़ी में 16 रेडार, 11 हाई डेफिनेशन कैमरा और 2 सुपर चिप्स हैं, जिसकी कंप्यूटिंग पावर 508 टॉप्स है। ये कार मुख्तलिफ किस्म की फाल हिफाजती टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेस लवंगी वेयरिंग, खुदकार ब्रेकिंग वगैरह और सिटी पायलटिंग, तेज रफ्तार पायलटिंग और खुदकार पार्किंग की हिमायत करती है। ये ड्राइवर के लिए हिफाजती जमानत की एक मकमल रेंज फराहम करती है।
स्मार्ट कनेक्टिविटी भी इस गाड़ी की एक खास खूबी है और वॉइस मुकम्मल तौर पर काबिल कंट्रोल है। 小爱同学 Music on करें, वॉल्यूम को 30 पर सेट करें, एयर कंडीशनिंग 23 डिग्री, एयर वॉल्यूम को लेवल 4 पर एडजस्ट करें, ड्राइविंग मोड को स्पोर्ट्स मोड में तब्दील करें, ड्राइवर सीट ऑफ करें, ड्राइवर की सीट वेंटिलेशन को ऑन करें, साथ ही पैलेट के साथ मिरर को बाहर की तरफ मोड़ गाड़ी की तमाम विंडोज खोलें, करीबी चार्जिंग स्टेशन तलाश करें। OK， 开了，媒体音量调到30%了，空调温度已经是最低了，没问题，调到4档了，安全起见。车速降到8以下才能操作，副驾的往外调了10%，找到了这附近的充电桩。Xiaomi SU7 से हम देख सकते हैं कि चीनी सादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जहानत की सतह पहले ही बहुत उम्दा है। सारिफिन सादा वॉइस कमांड्स के जरिए गाड़ी पर मुख्तलिफ कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जिससे ड्राइविंग की सहूलत और हिफाजत बेहतर होती है। अभी हम Xiaomi की चार्जिंग सिस्टम को टेस्ट करें, तो चले देखते हैं। चीन में गाड़ी के लिए चार्जिंग करना बहुत आसान है। हर जगह जैसे रिहायशी इलाकों में, शॉपिंग मॉल में, स्ट्रीट पर, पेट्रोल स्टेशन पर ये चार्जिंग की जा सकती है। और अब देखें ये Xiaomi SU7 में 2 चार्जिंग पोर्ट है, एक सुस्त के लिए है और एक फास्ट चार्जिंग के लिए है। इनमें से मैक्स मॉडल में 800V फास्ट चार्जिंग है, जो 5 मिनट में 220 किलोमीटर और 15 मिनट में 510 किलोमीटर चार्ज हो सकती है। Xiaomi SU7 की बैटरी लाइफ स्टैंडर्ड वर्जन के लिए 668 किलोमीटर है और मैक्स वर्जन के लिए 800 किलोमीटर है। मजबूत बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग के पीछे इस बुनियादी टेक्नोलॉजी की हिमायत है। हिफाजत के लिहाज से उसने दुनिया के सबसे मजबूत थर्मल फेलियर सेफ्टी स्टैंडर्ड हाई वोल्टेज इंसुलेशन प्रोटेक्शन की 17 परतें, इसी क्लास में सबसे बड़े कूल एरिया का 7.8 मरबा मीटर, एरोजेल इंसुलेशन के 165 टुकड़े और बैटरी इन्वर्शन टेक्नोलॉजी को अबूर किया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का दौर है। गुज़श्ता 10 सालों में चीन में नई तवानाई गाड़ी की पैदावार और फरोख्त 126 गुना इजाफा हुआ है, जो मुसलसल 9 सालों में दुनिया के पहले नंबर पर है। कमजोर से मजबूत तक चीन की नई तवानाई गाड़ियों की सनत की भरपूर तरक्की, टेक्नोलॉजी, सलाहियतों और सरमाए जैसे बहुत से तरक्याती अवामीर की तकसीम को बेहतर बनाने का एक कामयाब हवाला बन गया है और चीन की आला मयार की सनती तरक्की को फरोग़ देने की एक वाज़ेह तस्वूर भी है। चीन की नई तवानाई गाड़ियों का सब्ज़ तजर्बा भी आलमी सतह पर जाएगा, जिससे ग्लोबल विलेज के लिए तकनीकी मुस्तक़बिल और सब्ज़ मुस्तक़बिल तहलीक किया जा सकेगा। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। होंगजू एक दरीना और खुशहाल सकाफत है। यहाँ बारिश हो या धूप, हर चीज़ नस्लों की हुनरमंदी की याद दिलाती है। यौनशी के मकाम पर बांध से रास्ता दिलकश मंजर पेश करता है।
टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNN-H3.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।